Assalamu alaikum viewers. I'm Mr. Saidullah Khan. Viewers, today we have a topic the same prepositions and preposition as an adverb particles. Okay, PP number 5, lecture number 5, present prepositions, lecture number 5. We're gonna start. Previous we have learned on and onto, of, above, and on. Okay, we have understood this meaning. Okay, now today we'll start here another one. That one is called here up and down. The word is up, prepositions, and down, D-O-W, and down. These are two more prepositions. Up and down, my dear, what are these? Up and down, they are directions. Actually, they are directions. Okay, suppose if I say stand, if I say stand, what I show? Stand up. It means it is the direction. It shows the direction. If I say the word S-T-A-N-D, stand, and U-P, up, its expression and the direction. It shows the directions. Okay, up and down they use for D-I-R-E-C-T-I-O-N, direction. Okay, stand up. If I say S-I-T, sit. If I say sit, 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 अगर मैं कहता हूँ जब भी मतलब बैठ जाऊँ, लेकिन sit down फिर मुझे इशारा करने की क्या जरूरत है? अगर मैं विदाउट इशारा कहूँगा तो मैं कहूँगा sit, लेकिन मैं कहता हूँ sit down, तो it means sit, D-O-W, down. तो sit down, my dear, understood. Up is used for directions and down is also used for directions. Up is stand up and sit down. Okay, now one thing I have already mentioned you the directions in my first lecture when I just teaching you. This one means the adverb particles, preposition as an adverb particles when I was describing. So I described this position. I think so. Do you remember this position? I have written he is G-O-I-N-G. He is going the stairs. S-T-A-I-R-S, stairs. I have written this. Okay, and here blank. So he is going dash the stairs. Where is going? He is going up the stairs. He is going up the stairs. I can also say he is going down the stair. He is going down the stairs. He is going up the stairs. Where is he going? Number up. Where का आंसर है? W-A-T-R, where. Where is the going? जो आंसर where का देता है ये एडवर्ब कहलाता है. अभी सिंपल एडवर्ब तो नहीं है, इसमें prepositions भी है और आपके पास की नाउन भी शामिल है. देखिए प्लेस भी बता रहा है और डायरेक्शंस बता रहा है किस डायरेक्शन में. तो up the stairs. Up the stairs, it means it is adverb ADV, adverb phrase. ठीक है, this adverb phrase here is an adverb prepositions. Okay, the preposition is used as an adverb particles. ये adverb phrase का part है. That is why it is called adverb particles. So up shows the directions and down also used for directions. Somebody say that one, suppose कुछ यूं भी कहते हैं कि जनाब सर he is upstairs. He is upstairs. S-T-A-I-R-S, upstairs. एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ये सर हमने तो पढ़ा upstairs और आप लिख रहे हैं up the stairs. आप लिख रहे हैं up the stairs और हमने पढ़ा है upstairs. यूं भी लिख सकते हैं he is D-O-N, downstairs, T-A-I-S, downstairs. सर हमने तो upstairs और downstairs पढ़ा है. तो मेरे बच्चे सुन लीजिए, ये जो upstairs है ना, ये एक पूरा वर्ड है और ये एडवर्ब है. ये क्या है? ये एडवर्ब. ये एडवर्ब फ्रेज नहीं है.
ये है एडवर्ब फ्रेज, ओके। और ये मुकम्मल एक एडवर्ब है। और माय डियर, अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स, अपस्टेयर्स के माने अप द स्टेयर्स नहीं होते। अप द स्टेयर्स का मतलब ये है कि भाई कहाँ है वो, ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर है। कहां पर है, सीढ़ियों पर। तो पोजीशन क्या है, अभी वो सीढ़ियों पर है, ही इज गोइंग अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर ऊपर जा, सीढ़ियों पर है, सीढ़ी पर जा रहा है। तो सीढ़ियों के ऊपर मौजूद है, सरफेस कांटेक्ट मौजूद है। गेटिंग, अब देखिए अपस्टेयर्स, अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं ही इज अपस्टेयर्स, तो इसका मतलब अपस्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर वाले फ्लोर पर, सीढ़ियों पर नहीं, सीढ़ियों के ऊपर जो है फ्लोर, उस पर। डाउनस्टेयर, अगर मैं कहता हूं जनाब वेयर इज द ऑफिस, ऑफिस इज अपस्टेयर। वेयर इज द रिसेप्शन, रिसेप्शन इज डाउनस्टेयर। डाउनस्टेयर नीचे, अपस्टेयर ऊपर। ये मुकम्मल वर्ड है और ये कंप्लीट एडवर्ब है बेटा, कंप्लीट एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रेज नहीं है। सो वी आर लर्निंग हियर द एडवर्ब फ्रेज एज अ पार्टिकल, preposition यूज एज एडवर्ब पार्टिकल्स। सो ये हमारे एडवर्ब पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शन को सकते हैं, स्टैंड अप और सिट डाउन, ओके। गेटिंग, आ रही बात, सिट डाउन ओवर हियर, यहां पर बैठ जाइए, आ रही बात समझ। तो ये अप और डाउन का आज हमने यूज सीखा। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा आज अब जो हम यूज सीखने जा रहे हैं वो है बेटा अंडर एंड बीनीथ। अंडर एंड बीनीथ। अब अंडर क्या है और बीनीथ क्या है, इसको समझने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला की जात से कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा समझ आ जाएगा आपको, कहते। ओके, नाउ लिसन, दो वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है अंडर और दूसरा वर्ड है बीनीथ। ये देखिए, वर्ड है UNDER, अंडर, और दूसरा वर्ड है BENEATH, बीनीथ। अंडर और बीनीथ ये दो वर्ड्स हैं, इन्हें गौर से समझने की कोशिश कीजिए। इन दो वर्ड्स में, अंडर में और बीनीथ में क्या डिफरेंस है, ये अभी आपको यहां पर समझाता हूं, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अंडर और बीनीथ, एक्चुअली ये अंडर और बीनीथ जो है ना, इसमें जो डिफरेंस है, असल चीज क्या है, एक्चुअली ये है कवरेज, COVERAGE, कवरेज। अब आप कहेंगे कवरेज क्या चीज है, गौर से सुन लीजिएगा। सपोज जैसे ये सरफेस है, ये एक सरफेस है हमारे पास, वी हैव दिस वन सरफेस एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक सरफेस हमारे पास है। सपोज अब ये हमारे पास दो सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस ये और एक सरफेस। अब इसको समझिए, इस सरफेस में अगर कोई चीज यहां पर मौजूद है, ठीक है, यहां पर मौजूद है, इसमें क्या होगा, अंडर नीचे को कहते हैं, देखिए, लेकिन किस पोजीशन में, सुनिएगा, इसमें होगा FULLY, फुली, COVERED, कवर्ड, जिसमें सरफेस ने, ठीक है, उसने फुली कवर्ड किया हुआ, मुकम्मल तौर पे वो चीज उसके अंदर। आप देखिए, ये बिल्कुल इसके नीचे से बाहर नहीं है, तो हम यूज करेंगे वर्ड अंडर, ठीक है। अभी देखिएगा, लेकिन अगर आपके पास देखिए यहां है कोई चीज, ये है, ये है, ये बाहर निकल गई, अब ये बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गई, लेकिन है तो नीचे ही, है तो वो उसी के नीचे। लेकिन अगर नॉट फुली कवर्ड, यहां मैं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, NOT, नॉट, FULLY, फुली, COVERED, कवर्ड, फुली कवर्ड नहीं है, बल्कि वो उससे बाहर निकल गई है। तो अब हम इस पोजीशन को, जो ये पोजीशन है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे बीनीथ। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बीनीथ। और इसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये जो पोजीशन है, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे अंडर।
यहां तक बात समझ आ रही है? अगर मैं लिखता हूं सपोज एक सेंटेंस, वी we live, LIV, we live dash the sky, SKY, sky. अब अगर मैं ये लिखता हूं we live dash the sky, तो अब देखिए स्काई, अब स्काई के अंदर हमें नीचे है, तो अब इसने हमें फुली कवर्ड किया हुआ है, इसने हमें फुली कवर्ड किया हुआ है। तो अब हम इसमें और इसमें वही सरफेस टच नहीं है, तो ऐसी पोजीशन को क्या कहेंगे? हम फुली कवर्ड है तो हम कहेंगे अंडर, UNDER, अंडर द स्काई, वी आर अंडर द स्काई। गेटिंग? बात समझ आ रही है? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में, yes, suppose we are sitting, SITTING, sitting dash one roof, we are sitting dash one roof। अब देखिए one roof, it means the roof, we are under the roof, the roof fully covered us, रूफ ने हमें मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया, इसलिए हम क्या कहेंगे? फुली कवर्ड है। अब देखिए ये छत है और इस छत के नीचे मैं मौजूद हूँ, ऊपर सरफेस टच नहीं है, लेकिन उस सरफेस के नीचे मैं मौजूद हूँ, तो अब ये पूरी उसने मुझे फुली कवर्ड कर लिया है। गेटिंग? तो इसे, इसको हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम अंडर द रूफ। सो वी आर सिटिंग अंडर द रूफ, UNDER, अंडर द रूफ। क्लियर हो रही है बात? तो अंडर क्लियर हुआ यहाँ पर? ओके, नाउ ये तो कुछ एग्जांपल थे अंडर की एज एन एडवर्ब पार्टिकल्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वी लिव वेयर, भाई अंडर द स्काई, तो यहाँ आंसर किसका आ रहा है बेटा? वेयर का। ठीक है, एक एक चीज प्रूफ करता जा रहा हूं, देखते जाइए। अंडर द स्काई, अब अंडर द स्काई ये क्या है? पूरा यहां से अंडर द स्काई, ये एडवर्ब फ्रेज है, हम इसे लिखेंगे ADV, एडवर्ब फ्रेज। अब ये एडवर्ब फ्रेज तो है, लेकिन ये अंडर क्या है? इसका पार्टिकल्स है एडवर्ब फ्रेज का। ओके, इसी तरह अंडर द रूफ, ये भी किसका आंसर दे रहा है? WHERE, वेयर। अब ये पूरी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज तो है, लेकिन एक्चुअली एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि इसका पार्टिकल है। गेटिंग? प्रेपोजिशन। तो ये उम्मीद है अंडर समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द बीनीथ। अभी बीनीथ की सेंस दी थी मैंने, इसे हम बीनीथ कहते हैं। बीनीथ का मतलब होता है नॉट फुली कवर्ड, बट यू आर मींस इनसाइड, आप सॉरी यू आर अंडर, आप उसके अंदर तो होते हैं लेकिन नॉट फुली कवर्ड, आप उसके नीचे तो हैं लेकिन आपने फुली कवर्ड नहीं है, बल्कि आप उससे ज्यादा फैले हुए। मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? अभी उम्मीद है कि शायद ये समझ आ जाए। देखिएगा अभी यहां पर एक तस्वीर बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए। अभी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से बीनीथ का सेंस जो है ना समझ आ जाएगा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर आप गलती से बच जाएंगे, गलतियां नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बेटे असल चीज होती है कि हाउ टू गेट द वर्ड्स और मीनिंग एंड सेंस, किस तरह आप उसकी मीनिंग और सेंस। सपोज दीज आर द ग्रास, आप समझ गए, आप देख रहे होंगे ये ग्रास, समझिए ये ग्रास है। इस ग्रास में यूं समझ लीजिए कि यहां पर इस ग्रास में मैं यहां कर देता हूं आपको ऐसे, और ये ठीक है ना, ये समझ लें एक दरख्त लगा हुआ है इस ग्रास में, ठीक है ना, ये यहां पर एक ट्री लगा हुआ, ठीक, ये ट्री। अब ये जो है एक ट्री है, ठीक है। अब आप देखिए इस ट्री, ये ग्रास, ठीक है, यहाँ पे भी ग्रास लगी, यहाँ पे भी ग्रास है, ठीक है ना। अब इस ट्री में यहां पर अगर मैं यूं कर देता हूं कि यहां पर एक बंदे को बिठा देता, ठीक है ना, आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ, इसको किसी और मार्कर से बना दूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके पास। सपोज एक ये है हमारे पास पोजीशन, ठीक है, और यहां यूं समझ लीजिए ये जो है
ये कोई शख्स ऐसे यहाँ पर बैठा हुआ, ठीक है ना। अब ये जो शख्स है ये यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, इस दरख्त के पास, ठीक है। और कुछ पोजीशन यूं कर लीजिए, ग्रास को थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। सपोज जैसे हमारे पास ये डॉट डॉट नजर आ रहे हैं आपको, अभी देखते जाइए ये डॉट डॉट क्या है। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि डॉट क्यों लगा रहा हूँ। एक्चुअली दे आर फ्लावर्स, यूं समझ लीजिए कि छोटे छोटे फ्लावर्स, ठीक है ना। अब ये छोटे छोटे फ्लावर्स, ठीक। अब पोजीशन देखिएगा, अगर मैं यू लिखता हूं, देखिए अगर इस सेंटेंस को मैं लिखता हूं द मैन, TH, द MAN, मैन, ये एक शख्स है, ठीक है। द मैन इज सिटिंग, SITTING, द मैन इज सिटिंग डैश द ट्री, TREE, द मैन इज सिटिंग डैश द ट्री। अब देखिए ये जो मैन है ये अंडर द ट्री है, ठीक है। देखिए ट्री से बाहर नहीं है, दरख्त के नीचे, ठीक है। तो ये क्या है, ये द अंडर द ट्री, क्योंकि इसने बीनीथ, सॉरी अंडर, हाँ, द मैन इज अंडर द ट्री, क्योंकि मैंने कहा था कि फुली कवर्ड, मुकम्मल तौर पे कवर्ड है। तो अब ये जो होगा यहाँ आ जाएगा UNDER, अंडर द ट्री। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूं द फ्लावर्स, ये जो फ्लावर्स है द FLOWERS, the flowers are blooming, BOOMING, blooming dash the tree, dash the TREE। अब देखिए blooming dash the tree, ये फ्लावर्स जो है, सपोज ये छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये शख्स यहाँ घास में दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन ये जो है शख्स ये अंडर द ट्री है। लेकिन जो फ्लावर्स हैं, अब देखिए इन फ्लावर्स ने जो है फुली कवर्ड नहीं है, दरख्त ने फुली तौर पर इनको कवर्ड नहीं किया, बल्कि बाहर है दरख्त से थोड़ा, लेकिन है तो नीचे ना, दोनों हैं। लेकिन अब पोजीशन क्या होगी, अब हम यहाँ लिखेंगे बीनीथ, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, अब ये हो जाएगा बीनीथ, BENEATH, बीनीथ द ट्रीज। The flowers are beneath the trees and the man is sitting under the tree. Man under the tree और flowers जो है वो beneath the trees हैं। क्लियर हो रही है ये बात, आपको मेरी ये बात समझ आई है beneath और under की। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये लेक्चर समझ आ रहा होगा आपको। देखिए एक पोएम है डैफोडिल्स, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, क्या लिखा है कि beside the lake and beneath the trees, beside the lake and beneath the trees। उसने डैफोडिल्स जो देखे थे वो beside the lake, लेक के साथ साथ थे, और beneath the trees, दरख्त के नीचे। अब दरख्त के नीचे सिर्फ under the tree नहीं कहा उसने, क्योंकि बहुत सारे थे, और उसने at a glance 10,000 he saw at a glance, 10,000 के लगभग उसने देख लिए थे। अब देखिए beneath और under का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैं समझता हूं कि ये क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। ओके, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज, फिर